So, hello to all. Today we will talk about the adrenal gland. So basically अगर अपन देखें तो adrenal gland is made up of two parts. Basically adrenal gland को अपन एक और क्या भी बोल सकते हैं suprarenal gland. Why it is called suprarenal gland? Because it is present just above to the kidney. That's why it is called suprarenal gland. ठीक है. So the parts of adrenal gland are the medulla and the cortex. The peripheral part is called the cortex and the central part is called medulla. बेसिकली अब अपन अगर बात करें व्हाट आर द लेयर्स प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स पार्ट तो इसको अपन याद रख सकते हैं जीएफआर से। तो आउटसाइड वाली सबसे होती है जी और अंदर वाली होती है इनसाइड द आर। तो द आउटर मोस्ट लेयर इज जोना, जोना लगा देंगे सबके आगे, जोना मतलब जोन्स। तो बेसिकली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा एंड द मिडिल वन इज कॉल्ड जोना फेसिकुलेटा एंड द इनर मोस्ट इज कॉल्ड द जोना रेटिकुलरिस। ठीक है। What are the secretions done by these layers of the cortex? So the secretions are, so the glomerulosa layer will secrete the mineralocorticoid. Example is aldosterone hormone. ठीक है. And the fasciculata is secreting the glucocorticoid. That example is cortisol. ठीक है. And the reticularis layer is the responsible for the DHE secretion that is called dihydroxy epieandrosteredione. Steredione. That is example of this is testosterone. ठीक है. So the reticularis will secrete the DHEA and the fasciculata will secrete the cortisol and the glomerulosa will secrete the aldosterone. अब बेसिकली अपन बात करते हैं व्हाट आर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ दीज हार्मोन। ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एल्डोस्टेरोन के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन? इट इंक्रीजेस द सोडियम एंड द, और ये एक जनरल रूल है कि जहां जहां सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे पानी बगा चला जाएगा। ठीक है। तो इट इज इंक्रीज द सोडियम, सो विद द सोडियम देयर विल बी आल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। ठीक है। एंड अदर थिंग इज कॉजेज द लॉस ऑफ द के प्लस, मतलब पोटेशियम को बाहर करता है। ठीक है। पोटेशियम को बाहर करता है। ठीक है। पोटेशियम को बाहर करता है और हाइड्रोजन को भी इसके साथ में बाहर करता है। तो इट विल इंक्रीज एब्जॉर्प्शन of sodium, and along with sodium the water will also reabsorb. Okay. And this will cause the loss of the potassium and the loss of H plus. So what will happen in body if the aldosterone is increased? So now by seeing the normal function we can say that when the aldosterone will increase, then absorption of the sodium will increase, and along with sodium the water will absorb. So that's why the increase intravascular fluid. ठीक है। पानी ज्यादा जाएगा तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा। अब सीधी कहानी ये है कि पाइप में पानी बढ़ गया तो बेसिकली पानी इज अवर, पाइप में क्या बह रहा है? ब्लड वेसल्स है ना। सो द इन ब्लड वेसल व्हाट इज फ्लोइंग? दैट इज ब्लड। सो इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड दैट विल कॉज हाइपरटेंशन। क्या करेगा? हाइपरटेंशन। ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई, मैंने आपको एक और चीज क्या बताई मैंने आपको एक और चीज क्या बताई कि इट विल इंक्रीज द लॉस ऑफ द पोटेशियम। So what will happen? So if there will be loss of the potassium, so that's why when the aldosterone will increase, then the hypokalemia condition will occur. What is the hypokalemia? Decrease in the K plus concentration in the body. So basically we know that the potassium is present inside the cell. Basically ये इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। नर्व कंडक्शन में इसके बहुत हेल्प होता है। तो सीधी कहानी ये है कि अगर हाइपोकैलीमिया हो जाएगा तो पेशेंट विल भी, उसमें नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो बेसिकली धीरे धीरे उसके नर्व्स काम करना या न्यूरॉन्स उसके काम करना धीरे धीरे डिले में आ जाएंगे। तो दैट विल कॉज द पैरालिसिस। एंड द हाइपोकैलीमिया आल्सो कॉजेज द कार्डियक कंडक्शन में भी हेल्प कर रहा है ना बेसिकली पोटेशियम। सो दैट्स व्हाई द कार्डियक एरिथमियाज विल बी अकर इन द case of the increased aldosterone due to the hypokalemia. Okay. And what will the effect of the loss of, because it causes the loss of H plus na, so what will happen? H plus will be decreased, and when the H plus will be decreased the pH will be increase। और अपन जानते हैं कि 0, 0, 7 और 14, सो ये pH बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब it will towards the alkaline medium, so that's why the metabolic alkalosis is occur। ठीक है। alkalosis रेस्पिरेटरी भी हो सकता है और मेटाबॉलिक भी हो सकता है, लेकिन व्हाट विल हियर
It is related to the metabolism, na? Hormone are involved in the metabolism, na? So that's why metabolic alkalosis will occur in the case of the increased aldosterone. अब बेसिकली अपन बात करते हैं कि एक और चीज क्या हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन आती है टिटेनी। टिटेनी मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, जो नर्व होती है, नर्व में क्या होता है, जो सोडियम होता है, सोडियम एक लिमिटेड अमाउंट में बॉडी के अंदर जाता है, नर्व के अंदर जाता है, ठीक है। अब भाई सीधी कहानी है, एक दरवाजा, ये बेसिकली तुम्हारा नर्व है, तो यहाँ पे एक सोडियम का चैनल है, तो सोडियम अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अच्छी बात है, जा रहा है, ठीक है, सोडियम जा रहा है। लेकिन अगर ज्यादा चला जाएगा तो दिक्कत करेगा ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, ठीक है ना, समझ में आ रही है, मसल के पास में जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक मसल फाइबर है। यहाँ पे तुम्हारा नर्व आ रहा है, सोडियम जा रहा है, यहाँ से सिग्नल जा रहा है, और ये मसल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अगर सोडियम फ्लो हो रहा है नर्व के अंदर, तो दैट इज ओके। सो व्हाट विल प्रिवेंट द एक्सेस फ्लो ऑफ द सोडियम, so देयर इज ए कैल्शियम गार्डिंग, कैल्शियम गार्ड की तरह बैठा हुआ है बाहर, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम गार्डिंग। What is the function of the calcium guarding? It will prevent the flow of excess sodium in the nerve. जितना चाहिए उतना जाने दो भाई। भाई तुम मिठाई बना रहे हो तो उसमें 1 किलो चीनी लग रहा है, तो 1 किलो ही तो लगाओगे, 1.5 किलो लगा दोगे तो मीठा ज्यादा हो जाएगा ना, बेकार हो जाएगा ना वो, सही है कि नहीं है। तो इसी तरीके से अब उसको रोकने के लिए एक बगल में हलवाई का चेला बैठा, सपोज दैट, तो दैट चेला इज कैल्शियम, ठीक है। तो बेसिकली द कैल्शियम गार्डिंग विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एक्सेस सोडियम इन द नर्व, ठीक है। बट what will occur if the sodium is tremendously increase? Why the sodium will increase? Because the aldosterone is more. So that's why the sodium will in the excess ना। अब सीधी कहानी, जिसका प्रभुत्व वो कमजोर को दबा लेगा, तो भाई सोडियम बढ़ गया, सोडियम एक्सेस में हो गया। सो व्हाट विल बी द फेल, द कैल्शियम गार्डिंग विल बी फेल, ठीक है, एंड द सोडियम विल एंटर इनटू द नर्व। तो बेसिकली बार बार क्या होगा, उसको इम्पल्स मिल रहा है, तो उससे मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विल बी डेवलप, एंड इन द हाई अमाउंट। नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन तो चाहिए हमें, बार बार हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द टेटेनी कंडीशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टेटेनी, ओके। अब व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन द एल्डोस्टेरोन विल डिक्रीज, तो वी शुड नो द नॉर्मल फंक्शन एंड वी कैन प्रेडिक्ट द व्हाट विल बी द एबनॉर्मलिटी, ठीक है ना। सो एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हुआ तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड डिक्रीज, तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा, पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, और कार्डियक एरिथमिया। कम हो गया तो भी कार्डियक एरिथमिया, ज्यादा हो गया तो भी कार्डियक एरिथमिया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा, क्योंकि H प्लस अब बाहर नहीं जा रहा है भाई, तो अंदर बढ़ रहा है, तो पीएच डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज टुवर्ड्स द एसिड, दैट्स व्हाई द मेटाबॉलिक एसिडोसिस विल अकर, ठीक है। कॉर्टिसोल नॉर्मल है। अब एक चीज, अभी आप कॉर्टिसोल के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जो कॉर्टिसोल है नॉर्मल है तो ठीक है, अगर ये इंक्रीज होता है तो उससे कुशिंग सिंड्रोम होता है, अभी याद रखना, सी और सी ऐसे याद रखना, सी फॉर कॉर्टिसोल और सी फॉर कुशिंग सिंड्रोम, तो दोनों सी सेम सेम है, तो दोनों मतलब कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा तो कुशिंग सिंड्रोम होगा। और अगर कॉर्टिसोल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वेट लॉस होगा। हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो वेट लॉस तो होना ही है भाई, बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या कर रहा होगा, ये ब्रेक डाउन कर रहा होगा, किसी एक पर्टिकुलर सोर्स को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा है। अब ये नहीं होगा, कॉर्टिसोल अगर कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन बनेगी, तो फिर वेट लॉस में जाएगा पेशेंट। तो कॉर्टिसोल इंक्रीज तो कुशिंग सिंड्रोम, एंड डिक्रीज देन हाइपोग्लाइसीमिया, वेट लॉस, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं अपन एड्रिनल इनसफिशिएंसी की। व्हाट इज एड्रिनल इनसफिशिएंसी, तो दैट इज ऑफ टू टाइप्स, one is the primary adrenal insufficiency, one is the secondary adrenal insufficiency. And what is the primary adrenal insufficiency, that is example is Addison disease. So what will be the primary adrenal insufficiency, that is the Addison disease, and the causes are the autoimmune and TB, ठीक है, autoimmune TB, ठीक है। And the secondary is the pituitary dysfunction. Basically what is the primary, primary insufficiency का मतलब ये है कि जो डिफेक्ट है ना, वो डिफेक्ट एड्रिनल में कहीं है, लेकिन सेकेंडरी में एड्रिनल में डिफेक्ट नहीं है, किसी दूसरी चीज में डिफेक्ट है। जैसे पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी से एक पर्टिकुलर हार्मोन एक्स निकला, उसने एड्रिनल पे जाके भाई सिग्नल दिया कि यहाँ से भैया ये निकालो, कॉर्टेक्स से ये वाले हार्मोन निकालो, तो अब यहाँ पे पिट्यूटरी में डिफेक्ट है,
ठीक है, अगर इसका डिसफंक्शन होगा तो ये मीडिएटर नहीं निकलेगा, तो ये फिर कॉर्टेक्स पे जाके काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें पिट्यूटरी डिसफंक्शन है, एसीटीएच, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाता है इसमें। उसके लिए अपन नॉर्मल जानते हैं। तो बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है तुम्हारा, हाइपोथैलेमस तुम्हारा क्या निकलता है, सीआरएच। सीआरएच इज कॉल्ड कॉर्टिकल कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग corticotrophic releasing hormone, CRH, that will stimulate your anterior pituitary ना, anterior pituitary। वहां से क्या निकलेगा, ACTH निकलेगा। क्या निकलेगा, ACTH। अब बेसिकली व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ACTH, तो ACTH विल वर्क ऑन द cortex, but remember this, it will not work on the complete layers of the cortex, it will not affect the glomerulosa। okay, so ACTH निकला उसने जोना जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, उस पर वर्क किया उसने, रेटिकुलरिस पे, तो उससे क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन निकला। और फेसिकुलोटा पे काम किया तो कॉर्टिसोल निकला। लेकिन ग्लोमेरुलोसा पे कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली द ACTH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नो इफेक्ट ऑन द ग्लोमेरुलोसा, इट स्टिमुलेट मेनली फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेसा। ठीक है, सो जो ग्लोमेरुलोसा है वो तो अपना एल्डोस्टेरोन निकालती रहेगी, और इससे एब्जॉर्ब होता रहेगा सोडियम वाटर, और इससे इंक्रीज IVF हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली क्या हुआ, किसी को, अब मैं समझा रहा हूँ, अगर किसी को, अभी मैं प्राइमरी और सेकेंडरी के अभी पहुंचेंगे अपन। तो वॉमिटिंग और डायरिया हुआ किसी को, तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कम हुआ, तो किडनी के एक्टिव कर देती है, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास को, और रास से क्या होता है, रेनिन हार्मोन निकलता है। कृपया याद रखें, रेनिन इज नॉट RENIN, दैट इज अ एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ द कैसीन प्रोटीन इनटू द पैरा कैसीन। ठीक है, so the renin is responsible for the stimulation of the glomerulosa, so the aldosterone will increase, so absorb sodium and reabsorb increase हो जाएगा IVF। तो किसी को अगर वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, इसका मतलब देयर विल बी water loss and the sodium loss also, so the cells, macula densa cells of the nephron will detect that decrease sodium concentration, so the RAS system will activate, that will release the renin and it will act on the aldosterone, and aldosterone क्या करेगा, जो उसका काम है, एब्जॉर्ब करेगा सोडियम एंड वाटर को, उससे नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन एड्रिनल इनसफिशियंसी की। तो अपन बात करते हैं प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एडिसन डिसीज। तो आप बताइए, अगर प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी है तो बेसिकली क्या होगा, दिक्कत कहाँ पे, दिक्कत इज ना एड्रिनल ना, नॉट इन द पिट्यूटरी। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा और कॉर्टिसोल भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज होगा, और एल्डोस्टेरोन क्यों डिक्रीज होगा, और रेनिन इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसको समझते हैं, ये क्या हो रहा है, कहानी क्या चल रही है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखते हैं। तो डिक्रीज हो गया टेस्टोस्टेरोन, डिक्रीज हो गया कॉर्टिसोल। ठीक है, ACTH क्यों इंक्रीज है, बिकॉज नो डिफेक्ट इन द पिट्यूटरी, देयर इज नो डिफेक्ट इन द पिट्यूटरी। तो ACTH तो पिट्यूटरी से निकलना है ना भाई, सो देयर विल बी नो डिफेक्ट इन द पिट्यूटरी। अब एक चीज याद रखें कि जो कॉर्टिसोल होता है ना, नॉर्मली ये सप्रेस करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को। इसको सप्रेस करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को। मतलब बेसिकली ये क्या हो रहा था, ये यहाँ से CRH निकला, CRH ने पिट्यूटरी पे वर्क किया, पिट्यूटरी ने ACTH निकाला, ACTH ने आगे कॉर्टेक्स पे वर्क किया। अब कॉर्टेक्स ने कॉर्टिसोल निकाला, तो एक नॉर्मल अमाउंट तक तो ठीक है, फिर इसको क्या कर देता है, ये जो चल रही है ना HP एक्सिस, इसको ये इनहिबिट कर देता है। अब इनहिबिट करेगा तो ना तो CRH निकलेगा, ना पिट्यूटरी पे काम होगा, ना ACTH निकलेगा, सब रुक जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये है। लेकिन इस केस में क्या है, एड्रिनल में दिक्कत है, तो कॉर्टिसोल डिक्रीज है। अब इससे क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है वो मोर एक्टिव होगी। क्या होगी, मोर एक्टिव होगी, और वहां से क्या निकलेगा,
TRH मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा हाइपोथैलेमस से। और बेसिकली अपने को पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एक चीज मैं आपको यही बता देता हूँ, ये बहुत बेसिक चीज है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन निकलते हैं, एक होता है वेजोप्रेसिन और एक होता है साहब ऑक्सीटोसिन। वेजोप्रेसिन का ही दूसरा नाम होता है ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो अब ये एक्टिव ज्यादा होगी तो वहां से हार्मोन ज्यादा निकलेंगे, तो ADH का अमाउंट बढ़ जाएगा और TRH भी बढ़ जाएगा। तो जब ADH बढ़ जाएगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन तो इंक्रीज हो जाएगा, ये पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, सोडियम के साथ नहीं, केवल पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो उसको क्या हो जाएगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। मतलब पानी बढ़ता जाएगा लेकिन सोडियम का अमाउंट तो फिक्स है ना जितना था पहले ही। तो अब पानी बढ़ता गया, उसकी वजह से सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। अब एक चीज याद रखना, जो ACTH होता है वो क्या करता है, ACTH क्या करता है, ACTH स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स को। और अगर स्टिमुलेट करेगा अगर ये मेलानोसाइट को, तो मेलानोसाइट क्या होती है, मेलानिन पिगमेंट होता है, डेट इज ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, काम आपको पता ही है क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम यूवी रेस से, प्रिवेंट फ्रॉम यूवी रेस। तो इस वजह से इसमें हाइपर पिगमेंटेशन होगा, क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉर्टिसोल डिक्रीज है, एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज रहेगा। अब एल्डोस्टेरोन डिक्रीज रहेगा तो बेसिकली सोडियम कंसंट्रेशन भी कम है। ठीक है, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर रेनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, रेनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया आपको, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन, डिक्रीज कॉर्टिसोल, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, इंक्रीज रेनिन, इंक्रीज ACTH, इंक्रीज TRH, ADH, सब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशियंसी की। तो अब दिक्कत कहाँ पे भाई साहब, पिट्यूटरी डिफिशिएंसी, पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे ACTH कम हो रहा है। तो अगर ACTH कम हो गया तो बताओ, जो कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स से क्या हो रहा था, कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे थे, कॉर्टिसोल निकल रहा था, टेस्टोस्टेरोन निकल रहा था और एल्डोस्टेरोन निकल रहा था। लेकिन आप, मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था कि ACTH मेनली अफेक्ट द R and F, नॉट जनरली स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलोसा, या नो इफेक्ट ऑन द ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, तो सेकेंडरी में क्या हो रहा है, दिक्कत कहाँ है, ACTH कम हो रहा है ना, क्योंकि पिट्यूटरी में दिक्कत है भाई, दिक्कत इज वेयर, सो दिक्कत इज इन द पिट्यूटरी, तो दैट्स व्हाई डिक्रीज ACTH। अब जब ACTH ही डिक्रीज कम होगा तो ना तो F स्टिमुलेट होगा ना R स्टिमुलेट होगा। F से क्या निकल रहा था भैया, F से निकल रहा था कॉर्टिसोल, तो डिक्रीज कॉर्टिसोल हो जाएगा और डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। लेकिन एल्डोस्टेरोन और रेनिन नॉर्मल रहेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे तो एड्रिनल में दिक्कत थी ना, तो इस वजह से एल्डोस्टेरोन कम था, तो उसकी वजह से रेनिन ज्यादा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एल्डोस्टेरोन और रेनिन है वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ACTH डिक्रीज रहता है ना, इसकी वजह से क्या मिलती है, एल ब्लास्टर कलर्ड पेल स्किन मिलती है। इसमें पेलर मिलता है लेकिन एनीमिया नहीं मिलेगा यहाँ पे। पेलर क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो मिलेनोसाइट को स्टिमुलेट कर रहा था ना, मिलेनोसाइट का स्टिमुलेशन थोड़ा कम हो गया, तो जो स्किन का टेक्सचर था वो थोड़ा सा डाउन चला गया, मतलब कलर थोड़ा सा डाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे एनीमिया की वजह से है कि दैट इज नॉट ड्यू टू द एनीमिया, दैट इज ड्यू टू द डिक्रीज ACTH, देयर विल बी नो स्टिमुलेशन ऑफ द melanocytes, so that's why the color of the skin will be pale. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलाब्लास्टर कलर्ड पेल स्किन, दैट इज द फीचर ऑफ सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशियंसी, पिलर विदाउट एनीमिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। किसकी बात करते हैं, क्लिनिकल फीचर्स की। सही है, तो बात करते हैं कि डिक्रीज कॉर्टिसोल के क्या क्या फीचर होते हैं। तो डिक्रीज कॉर्टिसोल, जब कॉर्टिसोल डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, और लो बीपी होगा। ठीक है, समझ में आ गया, TSH बढ़ा हुआ मिलेगा और यहाँ पर हाइपोनाइट्रीमिया मिलेगा क्योंकि ADH ज़्यादा था। ठीक है, कॉर्टिसोल कहाँ पर ये अपन देख रहे हैं अभी, फिर अपन इनको कोरिलेट करेंगे कहाँ से, अपन बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी पे फिर। ठीक है, अभी अपन नॉर्मल फीचर्स देख रहे हैं कि अगर डिक्रीज कॉर्टिसोल होगा उसके क्या क्या फीचर होंगे, तो वेट लॉस, हाइपोग्लाइसीमिया, लो बीपी, लो बीपी समझ गए आप, डिक्रीज, अभी मैंने देखा था ना यहाँ पे, डिक्रीज कॉर्टिसोल की वजह से हो रहा है ये, हाइपोग्लाइसीमिया एंड द
वेट लॉस, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो डिक्रीज कॉर्टिसोल है तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस, हाइपोग्लाइसीमिया, लो बीपी, इंक्रीज टीएसएच एंड हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया होगा क्योंकि एडीएच बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों हाइपोनेट्रीमिया, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कॉर्टिसोल क्या करता है, एचपी एक्सेस को क्या करता है, सप्रेस करता है। लेकिन अभी कम है तो ये एक्सेस ज्यादा क्या रहेगी, स्टिमुलेट रहेगी, तो इसलिए वहां से एडीएच ज्यादा निकलेगा। एडीएच ज्यादा निकलेगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है, अब ज्यादा रहेगी तो इसलिए क्या निकलेगा, इंक्रीज टीएसएच भी निकलेगा। क्यों, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो पिट्यूटरी से निकल रहा है ना। सो दैट्स व्हाई द टीएसएच विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया, अगर हाइपोनेट्रीमिया होगा तो पानी भी बॉडी से लॉस है, तो इसलिए लो बीपी भी होगा। ठीक है। अब मिनरल अगर लो रहेगा तो मैंने आपको बताया सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन, आईबीएफ का अमाउंट कम हो जाएगा तो लो बीपी हो जाएगा। अब सोडियम कम है ना, क्या कम है, सोडियम कम है। सोडियम कम है तो उसको क्या कहेगा, सॉल्ट क्रेविंग रहेगी। क्या रहेगी, सोल्ट क्रेविंग। हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा ही क्योंकि मिनरल क्वालिटी एल्डोस्टेरोन कम है। हाइपर कैलीमिया मिलेगा, बता ही दिया आपको ऊपर मैंने समझाया था कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटेशियम को बाहर फेंकता है। तो अगर कम है तो पोटेशियम अंदर रहेगा तो हाइपर कैलीमिया। तो बताओ ये हाइपर कैलीमिया एड्रिनल सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि वहां पे एल्डोस्टेरोन और रेनिन नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि एसीटीएच का इफेक्ट नहीं है किस पे, ग्लोमेरुलोसा पे। दैट इज ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। अब डिक्रीज एंड्रोजन डेफिशिएंसी, डिक्रीज हो जाएगा, एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, उससे लॉस ऑफ लिबिडो होता है, लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स। सही बात है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना वो। तो लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स हो जाएगा। ठीक है। सो ये दोनों प्राइमरी, तो बेसिकली इसमें कॉमन फीचर्स हैं। तो देखो ये डिक्रीज कॉर्टिसोल और डिक्रीज एंड्रोजन दोनों में हो रहा है ना, ये दोनों में हो रहा है। तो ये सारे जो दोनों के फीचर है वो दोनों में कॉमन मिलेंगे। लेकिन जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है, मिनरल कॉर्टिकॉइड डिक्रीज है, ये कहाँ पे मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा प्राइमरी एड्रिनल प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में। ठीक है। तो वहाँ पर ये भी फीचर मिलेंगे। लेकिन लो बीपी मिल रहा है इसका मतलब अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लो बीपी, डिक्रीज कॉर्टिसोल तो दोनों में मिल रहा है ना, तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो लो बीपी मिनरल कॉर्टिकॉइड में भी है। तो यहाँ पे अब ये मत बोलना कि यहाँ पे लो बीपी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी लो बीपी मिलेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल तो यहाँ पे भी कम है ना। लेकिन यहाँ पे हाइपर कैलीमिया नहीं मिलेगा भाई साहब। क्यों नहीं मिलेगा हाइपर कैलीमिया, क्योंकि एल्डोस्टेरोन यहाँ पे कम ही नहीं है, नॉर्मल है सेकेंडरी में। ठीक है। चलिए, अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका। तो एड्रेनल इनसफिशिएंसी है, क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट है, तो इंजेक्शन देते हैं कॉसिन ट्रॉफिन का, सीआरएच का होता है ये, आईएम या आईवी दिया जाता है 30 to 60 मिनट। ठीक है, 30 to 60 मिनट पर दिया जाता है, आफ्टर 30 to 60 मिनट। और इसमें फिर आईवी, अब सॉरी मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, गलत बोल गया मैं। एड्रेनल इंसफिशिएंसी का केस है, क्लिनिकल फीचर्स अगर प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या देंगे, इंजेक्शन देंगे। तो एड्रेनल इंसफिशिएंसी में चाहे प्राइमरी ले लो चाहे सेकेंडरी ले लो, कॉर्टिसोल तो दोनों में कम था ना, तो इंजेक्शन कोसिनेट्रोफिन देते हैं, दैट इज सीआरएच। ठीक है। सीआरएच का मतलब क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये आईएम दिया जाता है या आईवी दिया जाता है। अब इसके 30 से मतलब इसको देने के 30 से 60 मिनट बाद अपन क्या करते हैं, सीरम कॉर्टिसोल मेजर करते हैं। अगर ये 500 नैनो मोल पर लीटर से कम आ रहा है ना, देन इट इज द केस ऑफ एड्रिनल फेलियर। ठीक है। चलिए, अब अपन ये कैसे पता लगाएंगे कि सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी है। ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया, क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट हुआ, कोसाइन ट्रॉफिन का इंजेक्शन दे दिया, सीआरएच है दैट इज, आईएमआई भी दिया, 30 से 60 मिनट में मेजर किया, अगर 500 नैनो मिली मोल पर लीटर से कम आ रहा है तो एड्रिनल फेलियर है। अब इसमें प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। तो प्राइमरी में क्या मिलेगा, एसीटीएच बढ़ा है, रेनिन बढ़ा है, एल्डोस्टेरोन कम है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन कम है, इसकी वजह से रेनिन बढ़ा है, क्योंकि सोडियम कम है, इस वजह से रेनिन बढ़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन सेकेंडरी में एसीटीएच कम आएगा, रेनिन नॉर्मल, एल्डोस्टेरोन नॉर्मल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी देंगे और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी देंगे। तो इसके लिए देते हैं फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं, दैट इज शॉर्ट एक्टिंग, और प्रेडनिसोन दे सकते हैं, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो दोनों देने। और यहाँ पे सेकेंडरी में एसीटीएच का में तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही देंगे अपन। क्यों,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो नॉर्मल है ना, एल्डोस्टेरोन और ये रेनिन तो नॉर्मल है। बात करो टेस्टोस्टेरोन की, क्योंकि वो सेक्सुअल करेक्टर से संबंधित है, ना कि नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी से इतने संबंधित नहीं है। नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी से संबंधित है, लेकिन वहाँ पर सेक्सुअल करेक्टर से ज़्यादा संबंधित है, तो इसलिए अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन यहीं तक बात करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक्यूट एंड chronic adrenal insufficiency. Thank you for this lecture.